آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ اسمبلی الیکشن ختم ہوا، میں کشمیر کے سارے لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے کمپین کے دوران مجھے ہر جگہ بہت پیار دیا، ہماری بات سننے کے لیے آئے، ہمیں تعاون دیا، خاص طور سے یوتھ کا کہ جنہوں نے رات دن تمام مصروفیات کے باوجود، تمام ہمارے مخالفین کے حربوں کے پروپیگنڈا کے باوجود جو ہماری کمپین کا حصہ بنے۔ تو اس وقت میرا آپ سے بات کرنے کا 2-3 مدعوں پر مقصد ہے۔ پہلی گزارش یہ ہے کہ کل کاؤنٹنگ ہے، سارے مانتے ہیں، خاص طور سے جو ریجنل پارٹیز خود کو کہتی ہیں کہ جو بھی سرکار بنے گی یونین ٹیریٹری کی سرکار ہوگی، اور اس میں جو الیکٹڈ سرکار ہوگی اس کے پاس اختیارات بہت کم ہوں گے۔ چنانچہ اب الیکشن ہو گئے اور کل میجارٹی کس کے پاس بھی آتی ہے وہ الگ بات ہے، سرکار کوئی بھی بنائے، مجھے صرف اتنی گزارش کرنی ہے، 5 سال ان لوگوں نے کچھ کیا نہیں، گپکار الائنس، سو کالڈ ریجنل پارٹیز۔ اب اگر الیکشن ہوا تو میری ہمبل گزارش ہے، خاص طور سے جو انڈیا بلاک، پی ڈی پی، پیپلز کانفرنس، باقی اپنی پارٹی، باقی پارٹیاں، کہ چلے ایک چیز پر آپ تو یونائٹ ہو جائے۔ ہمیں پتہ ہے کہ انڈیا الائنس کی مجبوریاں ہیں، ووٹ تو انہوں نے کشمیر سے لیے لیکن 370 پر کانگریس نے خاموشی اختیار کی۔ میں اس وقت کوئی بٹرنس ایڈ نہیں کرنا چاہتا ہوں، میری ایک سجیشن ہے ان سب سے کہ جب تک اسٹیٹ ہوڈ ہمیں نہ ملے کوشش کریں کہ نئی سرکار تب تک نہ بنے۔ اگر میجارٹی بھی ملے گی، چاہے کسی اکیلی پارٹی کو ملے، الائنس کو ملے، یا انڈیپینڈنس کا سپورٹ چاہیے یا کسی اور کا سپورٹ چاہیے، تو اچھا رہے گا کہ اگر یہ ساری پارٹیاں ایک پوائنٹ پر فوکس کر کے یونین گورنمنٹ پر یہ کہتے ہیں کہ آپ اسٹیٹ ہوڈ واپس دے دیجئے، الیکشن ہو گیا۔ اگر عمر صاحب خود کہتے تھے کہ میونسپلٹی سے زیادہ پاور اس سرکار کے پاس نہیں رہے گا، تو ان پر بھی لازم ہے، پی ڈی پی پر بھی لازم ہے، سب پر لازم ہے، کم از کم ایک چھوٹی سی چیز ہے، اتنا بڑا مسئلہ ہے نہیں، مودی جی نے ویسے ہی گول پوسٹ چینج کر دیا، تو تھوڑا سا مل کے یونین سرکار سے کہتے ہیں کہ کم سے کم اسٹیٹ پہلے دیں، تھوڑا سا وقار بحال ہو، اور اگر اس میں انہیں اے آئی پی کا بھی تعاون چاہیے، ہم باقی چیزوں کو چھوڑ کر اس ایک پوائنٹ پر ان کے ساتھ کوآپریٹ کرنے کو تیار ہیں، ارسپیکٹو آف دا فیکٹ کس کو کتنی سیٹیں ملتی ہیں۔ لیکن ایک ووٹر کا یہی خواہش ہے کہ یہاں کی سیاسی پارٹیاں بیان بازیوں سے آگے نکل کر پریکٹیکلی کچھ ایسا کریں جس سے لوگوں کا سیلف کانفیڈنس ریسٹور ہو، لوگوں کے رائٹس ریسٹور ہوں، اور اگر اسٹیٹ ہوڈ کی ڈیمانڈ یونائٹڈلی جموں اور کشمیر کے لوگ، پولیٹیکل پارٹیاں، الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز یونین گورنمنٹ تک پہنچا دیں اور یہ کہہ دیں کہ یا تو آپ ہمیں اسٹیٹ ہوڈ دیجئے یا پھر تب تک ہم تھوڑا دور رہیں گے سرکار سے، سرکار بنانے کی کوشش سے، تو بہت اچھا رہے گا۔ دوسری میری گزارش یہ تھی کہ میں ابھی 2 دن دلی سے ہو کے آیا، پہلی بار 5.5 سال بعد جموں کشمیر ہاؤس جانے کا موقع ملا۔ لداخ کے لوگ ہمارے بھائی ہیں، میں حیران ہوا یہ دیکھ کر کہ جو مین جموں کشمیر ہاؤس ہے وہ سارا لداخ کے یو ٹی کو دیا گیا ہے، وہ سارا لداخ یو ٹی کو دیا گیا ہے۔ افسوس یہ ہے کہ اگر جموں کشمیر لگ بھگ 2 کروڑ کی آبادی ہے،
2 करोड़ की आबादी के लिए 2 ब्लॉक, कोई 20-25 कमरे, और लद्दाख की आबादी मुश्किल से 3-4 लाख है, उनके लिए भी उतना ही हिस्सा उसमें दिया गया, उतना ही शेयर दिया गया। ये जाती क्यों? मैं पूछना चाहता हूं कि 5 अगस्त 2019 के बाद माई हम्बल अपील टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द local government would be that what was the criteria adopted to divide the properties between Ladakh and Jammu and Kashmir. I have love, respect and sympathy for the Ladakhi people. लेकिन दुख यह है कि वहाँ तो बैठना ही है, वहाँ बच्चे जाएंगे, लोग जाएंगे, पेशेंट जाएंगे, बाकी लोग जाएंगे, तो आपने 4 लाख लोगों के लिए भी उतनी अकोमोडेशन वहाँ प्रोवाइड कर दी और 2 करोड़ लोगों को भी उतनी ही जगह दे दी। व्हाट वाज द क्राइटेरिया? और जो जगह जम्मू कश्मीर को मिली है वो तो पहले वहाँ पर कोई बीमार ज़्यादा था, कोई और ज़्यादा था, उनके लिए रिजर्व थी, छोटे छोटे कमरे, उससे बड़े तो बाथरूम है लोगों के घरों में। तो मुझे उम्मीद है कि आपकी वसादत से सरकार तक ये बात पहुँचेगी। एंड आई वांट एन एक्सप्लेनेशन एज अ सिटीजन ऑफ द स्टेट एंड एज मेंबर पार्लियामेंट ऑफ नॉर्थ कश्मीर कि हमें ये बताया जाए कि क्राइटेरिया क्या था जिस पर आपने वो बंदर बांट कर दी और हमारे रिसोर्सेज को आप हर चीज़ में जिस तरह मर्जी उस तरह कश्मीरियों को लेट डाउन करते हैं। और जम्मू के लोगों से मेरी गुजारिश है कि वो भी ये चीज़ें देख लें। तीसरी चीज़ मेरी ये गुजारिश है, अब तो सरकार कल बनेगी थी, मैं कहता हूं कि फिलहाल पार्टियां रुक जाएं। अगर सरकार कल बनाते हैं तो एक कैपिटल इसका कहाँ होगा? श्रीनगर है या जम्मू है? दरबार में एक अच्छी ट्रेडिशन थी जो एक बॉन्डिंग का काम करता था बिटवीन 2 रीजन्स, कल्चरल बॉन्डिंग, इमोशनल बॉन्डिंग, हर तरह से बॉन्डिंग। सिर्फ ये कहना कि उससे कितने कुछ करोड़ पैसे हमें खर्च होते थे, आई डोंट थिंक दैट कैरीज अ लॉजिक। सेक्रेटरीट में जाके जो मुझे पता चला लोगों का काम सफ़र होता है, पैसा बचाने के बजाय कन्फ्यूजन है, ऑफिसर में भी कन्फ्यूजन है, लोगों में भी कन्फ्यूजन है। तो मेरी ये गुजारिश है कि नई सरकार बनाने से पहले एक बड़ा दिल दिखाकर हर चीज़ को अन्ना का मसाला बनाकर दरबार मुखी रिवायत को फिर से बहाल किया जाए ताकि जम्मू और कश्मीर के लोग एक दूसरे से मिल सकें, मिलजुल सकें और एक जो उनका एक कल्चरल बॉन्डिंग है वो मजबूत हो जाए। उसके अलावा आप सबको मालूम है कि अभी कुछ दिन पहले यति नरसिम्हन आनंद नामी एक तथा कथित पुजारी ने एक बार फिर प्रॉफिट हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गुस्ताखी की। हमें उसे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं क्योंकि वो हमारे दिलों में रहते हैं। किसी भी मुसलमान को दिल बर्दाश्त होने की ज़रूरत नहीं, लेकिन उनके नाम पर मुसलमान अपना सब कुछ कुर्बान कर सकता है। लेकिन मेरा मोदी जी से इतना सवाल है, अगर आपने मुझको यूएपी में बंद कर दिया, कश्मीरी बच्चों को सोशल मीडिया पोस्ट करने पर तिहाड़ जेल भेजा गया, तो इस गुस्ताख रसूल की सज़ा क्या है? जो योगी आदित्यनाथ डोजर लेके हर जगह पहुंच जाते हैं, आखिर क्या ये आदमी यूएपीए तो इन लोगों के लिए बना था? हम पूछना चाहेंगे पूरे हिंदुस्तान के, मैं नहीं कहता हूँ सिर्फ मुसलमान ही, जो सेक्युलर हमारी मेजॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं, दे आल्सो वांट टू नो व्हाई दिस मैन एंड फ्यू अदर्स लाइक हिम हैव नॉट बीन बुक्ड अंडर यूएपीए। उनके लिए आपने क्या सजा तजवीज़ रखी है? और वी ऑल कंडेम इट। ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन 2 चीज़ें मैं तवज्जो आपकी चाहूँगा। इलेक्शन कमीशन से मेरा सवाल है, मैंने इसी कमरे में बताया भी था जब मैं आया था, हमारी पार्टी का रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं दिया गया। व्हाट इज़ द रीज़न? हमने एमपी का इलेक्शन 19 में लड़ा एआईपी के नाम पर, 24 का हम जीत गए एआईपी के नाम पर, पंचायत इलेक्शन हमने एआईपी के नाम पर लड़े, और आज असेंबली के इलेक्शन भी हमने एआईपी के नाम पर लड़े। और हमारे साथ इतनी ज़्यादती क्यों? मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, फॉर गॉड सेक let the nation know, let the people of J&K know, why didn't you give registration to अवामी इत्तेहाद पार्टी? आपने इस पीरियड में डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी को रजिस्ट्रेशन दे दी, अल्ताफ साहब की अपनी पार्टी को रजिस्ट्रेशन दे दी, बाकी पार्टियों को रजिस्ट्रेशन दे दी जिनका एड्रेस ही नहीं है। लेकिन एआईपी को, जिसने पार्लियामेंट इलेक्शन में इतनी अच्छी कारकर्दगी दिखाई, हमें आपने नचाया श्रीनगर से दिल्ली, दिल्ली से यहाँ, आखिर हमसे इतनी बेर क्यों? इलेक्शन कमीशन को खुल के कहना चाहिए कि वो हमसे चाहता क्या है। उससे भी बड़ी बात यह है कि जब हमने फिर एंड पे कहा हमें कॉमन सिंबल दे दो, तो नहीं दिया गया। कहीं हमारा निशान प्रेशर कुकर था मेजॉरिटी ऑफ सीट्स पर, कहीं
वो गड़ा दिया गया, कहीं इंजन दिया गया, कहीं जंजीर दी गई, कहीं ऑटो दिया गया। ये इनजस्टिस क्यों? ये इलेक्शन कमीशन की न्यूट्रलिटी पे सवाल है। हमें उम्मीद है कि वो रेस्पॉन्ड करेंगे और आपसे भी कहेंगे जब भी आपको मौका मिले। यू आर वॉइस ऑफ द वॉइसलेस, आप उनसे भी ये पूछ लें कि ऐसा आखिर उन्होंने क्यों किया। और जम्मू कश्मीर पुलिस से हम शुक्रगुजार है एडमिनिस्ट्रेशन के कि चलिए फिर भी कंपेरेटिवली जितना उन्होंने किया सबको फैसिलिटेट किया, लेकिन कई जगहों पर खास तौर से बड़गाम में जब हमारी कैंपेन चल रही थी बीरवा में, तो एक एडिट करके वीडियो बनाया गया कि जिसमें हमारे कारकुन पर कहा गया, उसने एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के बारे में कहा कि स्लोगन कोई दिया। पुलिस ने फिर खुद कहा कि ऐसा कुछ नहीं था, शिया बनोगे ना बहना। जब उसने कहा ऐसा नहीं था, फिर पुलिस ने 3 बंदे गिरफ्तार भी कर लिए, लेकिन वो 3 बंदे गिरफ्तार करने के बावजूद उनको छोड़ा गया। और ना ही पुलिस ने ड्यूरिंग कैंपेन, ड्यूरिंग इलेक्शन प्रोसेस स्टेटमेंट भी नहीं डाला कि ये फेक था। अफसोस हमें इस बात का है कि हम पूछना चाहते हैं जम्मू कश्मीर पुलिस से, अगर बड़गाम में किसी बंदे ने एडिट करके फेक वीडियो फैलाया, सेक्टेरियन डिवाइड करने की कोशिश की, उन बंदों को आपने गिरफ्तार क्यों नहीं किया? ये ऐसा किसके इशारे पर हुआ? ये मेरी डीजीपी साहब से मुअद्दबना गुजारिश है। तो ये कुछ बातें थी जिन पर हमने सोचा कि आपके सामने रखें और आपसे ये अपना नुक्ता नज़र रख लें। तो अगर आपको कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। कुछ आप इस पोजीशन में होंगे कि आपके बगैर सरकार नहीं बनेगी, क्या आप सरकार बनाने के लिए दोनों साइड में किसी साइड को सपोर्ट देंगे कि आप अपोजिशन में बैठने का तैयार कर सकेंगे? सर अभी वेट कीजिए, मैंने पहले भी आपसे कहा कि मेरे लिए प्रायोरिटी सरकार बनाना नहीं है, सरकार तो भी बनेगी। वेट कीजिए, कल तक नतीजे आए, देखते हैं उसके बाद। इंजीनियर साहब, अभी कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रोविजन है उसको वायलेट किया जा रहा है। आर्बिट्री जो रूल्स है या पावर्स है वो एलजी को दिए जा रहा है, इवन डिस्पाइट की प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज नॉट अथॉरिटी टू यूज द आर्बिट्री पावर्स। तो उसको आप कैसे देख रहे हैं? इवन कांग्रेस हैज ऑलरेडी सेड दैट दिस इज द प्री पोल रिगिंग। किस चीज का आप वजाहत करें थोड़ा? 5 मेंबर जो नॉमिनेट हो रहे हैं। देखिए, उस पर आपने अच्छा सवाल पूछा। जब ये चीजें हुई मैं जेल में था। मैं मोदी जी से एक ही गुजारिश करना चाहूंगा, मेरे लिए अभी आप में किसी ने मुझे बाहर कोई कह रहा था कि बीजेपी को पहले ही 5 सीटें मिली। मैं उसको बीजेपी और कांग्रेस लड़ाई में नहीं देखना चाहता हूँ। सवाल यह है, अगर मोदी जी ये कहते हैं, अमित शाह जी कहते हैं, बीजेपी दावा करती है कि अब इंटीग्रेशन पूरा हुआ, एक विधान, एक प्रधान, एक निशान, तो अगर पूरे कंट्री में कहीं नॉमिनेशन नहीं है तो JNK में क्यों? बल्कि मैं कहता हूं, एक तरफ आपने स्पेशल स्टेटस सो कॉल्ड खत्म किया, दूसरी तरफ आपने एक नया स्पेशल स्टेटस लाया। अगर हमारे कश्मीरी पंडित भाई, तो हमारे भाई हैं, वो भी इलेक्शन लड़ते हैं। मेरी पार्टी में भी एक कश्मीरी पंडित भाई इलेक्शन लड़ रहा था, हमने भी टिकट दिया। कश्मीर में दर्जनों कश्मीरी पंडित भाई इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो बिल्कुल एज गुड स्टेक होल्डर्स है जितना हम हैं। तो मेरा ये सवाल है, फिर मेरा बेसिक कंसेप्ट से ही झगड़ा है कि नॉमिनेशन क्यों? फिर डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? उसके लिए आप काउंसिल बनाओ, लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाओ, उसको बहाल करो, जितनी मर्जी उतने आप नॉमिनेट करो, आई हैव नो प्रॉब्लम। जैसे अपर हाउस इधर पार्लियामेंट में है, जैसे यहाँ पर था। असेंबली का फिर स्पिरिट ही डाई हो जाता है अगर आप किसी को भी नॉमिनेट करें। आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट कश्मीरी पंडित्स, आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट POK रिफ्यूजीज। मैं कहता हूँ किसी को भी आप असेंबली में नॉमिनेट करोगे, मेरी ये सोच है कि डेमोक्रेसी के और कॉन्स्टिट्यूशन के स्पिरिट के खिलाफ है। एक फिर दूसरी बात, अगर आप ये कहते हैं कि कश्मीरी पंडितों को नुमाइंदगी देनी है, तो व्हाट अबाउट मुस्लिम्स इन गुजरात, यूपी, पार्लियामेंट? मोदी जी की कैबिनेट में शायद एक भी मुस्लिम मिनिस्टर नहीं है। तो लिहाजा ये मोदी जी को सोचना होगा पहले कि अगर वो कहते हैं कि हमने यहाँ पर एक मतलब विधान, एक प्रधान, सब कुछ खड़ा कर दिया, तो फिर जम्मू कश्मीर में चोर दरवाजे से ऐसा करने की क्या जरूरत है? वही सवाल POG के रिफ्यूजीज का है। जब वो भी इलेक्शन लड़ सकते हैं, वो जम्मू में सेटल्ड हैं, आपने उनको पैकेज भी दिए, सब कुछ दिया, वोटिंग राइट भी दिया, इलेक्शन भी लड़ सकते हैं, तो नॉमिनेशन क्यों? तो मेरा अपनी रीजनल पार्टी से सवाल है कि आपने इन चीजों पर किया क्या 5 साल? जब फारूक साहब ने कहा था जेल से छूटने के बाद कि अब हम गांधीयाई मूवमेंट के जरिए लोगों के राइट्स की बात करेंगे, वो मुझे कोई एक राइट बता दें जो उन्होंने सिक्योर किया। इंजीनियर रशीद अभी कुछ दिन के लिए यहाँ है, मुझे नहीं पता कि मेरी बेल एक्सटेंड होगी, क्या होगा। जितना हमसे हो सके हम कर रहे हैं, और मेरा जेल में बैठना ही ये था कि मैं इन कॉलोनियल सरकार के इन आमिराना
फैसलों के खिलाफ लड़ रहा था. दैट्स व्हाई आई वाज विक्टिमाइज्ड. यू ऑल नो इट. तो ये क्वेश्चन बाकियों के लिए है, और जो कोई भी इस सिलसिले में कोई अच्छा कदम उठाएगा, आई एम देयर टू सपोर्ट देम. इंजीनियर साहब, अकॉर्डिंग टू एग्जिट पोल भाजपा को जम्मू में मेजॉरिटी मिल रही है और कश्मीर में एनसी को मेजॉरिटी मिल रही है. अगर कल को आप, क्योंकि एग्जिट पोल में आपको भी कुछ सीटें मिल रही, तो किनके साथ आप जाना पसंद करेंगे? सर, मैंने इस सवाल का पहले ही जवाब दिया. मेरी प्रायोरिटी सरकार बनाना नहीं है. मेरे लिए परेशानी यह है कि मतलब कश्मीर में है ना वो कहावत है, पूज मना काठ मना बगोश जानो तो पूज मना ब्याह नहीं लिखिए. मेरे लिए वही मामला है. सर, और एक रिक्वेस्ट है कि अगर किसी को भी कुछ पूछना है, इसके बाद मुझे कोई बाइट नहीं देनी है, मुझे जल्दी कहीं जाना है, जो भी कहना है यहाँ कह दीजिए. चूंकि इलेक्शंस पीसफुली कंक्लूड हुए हैं, आप नया कश्मीर, बीजेपी के नया कश्मीर को प्रोपेगेंडा करते हैं और आपके बैनर पे भी लिखा है जेल फ्री कश्मीर. सो आप प्रिजनर्स की बात करें और साथ साथ आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के आगाज में कहा कि जो यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज है रीजनल सो कॉल्ड, लेकिन जब हम आपके कैंडिडेट्स पर नजर दौड़ाते हैं जिनको आपने मैंडेट दिया, सो वो इन्हीं रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज से वाबस्ता है. दूसरा, जो प्रिजनर्स की आप बात करें, आप ही के कैंडिडेट एक प्रिजनर की बेटी के साथ ही नाजिबा अल्फाज उनके खिलाफ. दूसरा, तीसरा ये कि बैनुल अक़वामी सतह पर आप ही के एक कैंडिडेट वहाँ पे जाके कहते हैं कि कश्मीर में मिलिटेंट यहाँ की ख़वातीन के साथ रेप कर रही है. सो हाउ वुड यू? ये चीजें आज आपको याद आई, इलेक्शन खत्म होने के बाद अगर आप कैंपेन में कहते हैं मैं आपके हर सवाल का जवाब देता. और दूसरी बात है कि लोगों ने इन सवालों का जवाब दे दिया है बैलेट में, वो कल सामने आएगा क्या वो आपकी इन बातों का भरोसा करते हैं या उनकी इमेज का. एक फिर इलेक्शन सीजन में थोड़ा तू मैं कैंडिडेटों में होता रहता है, इट इज नेचुरल. तो मेरे हिसाब से ऐसा कुछ भी नहीं है. वी हैव रेस्पेक्ट फॉर ऑल. और अगर कोई कुछ कहता है वो उसकी पर्सनल राय है. हम तो अभी जेल से निकले हैं, इंशाल्लाह हम एक नया कश्मीर बना के दिखा देंगे, वो आने वाला वक्त साबित कर देगा. हाँ, बताएं छोड़ के. इरफान बताओ पूछो. हाँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट है सर. हाँ, बताएं. How do you see जयशंकर जी का पाकिस्तान जाना अच्छी बात है, लेकिन मैं दोनों मुल्कों से हाथ जोड़ के कहना चाहूंगा कि जब आपको दोस्ती करनी होती है तब हमें पता भी नहीं चलता. जब दुश्मनी करनी होगी तो कश्मीरियों को बीच में लाते हैं. जब इंडिया को पाकिस्तान को गाली निकालनी होगी तो हमें पाकिस्तान प्रॉक्सी कहते हैं. जब पाकिस्तानियों को इंडिया को कुछ करना होता है तो हमें सताते हैं.